انور مسعود کی طرف جاتے ہیں جو کہ بڑی مشکل سے ہمارے قابو آئے ہیں، اور ان سے پہلے رائے لیتے ہیں کہ ماں کے بارے میں حضرت آپ کا نقطہ نظر، آپ کا خیال اور آپ کے جذبات کیا ہوں گے؟ السلام علیکم۔ ماں، میرا پیغام یہی ہو سکتا ہے کہ ہمارے مذہب نے تو یہی کہا ہے کہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے، لہذا اس کا احترام ہمارا پہلا فرض بنتا ہے۔ اور میں نے جو میری نظمیں بہت مقبول ہوئی ہیں ان میں سے ایک نظم وہ ہے جو میں نے ماں پر کہی ہے۔ وہ جو آپ کی نظم ہے جس کا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں ممتا کا، اس کو ذرا سیک و سباق کے ساتھ سنا سکتے ہیں کہ اس کا پیش منظر اور پس منظر کیا تھا، اور وہ لفظ آپ نے جو پروئے ہیں وہ کیا ہیں؟ بالکل، میں سنا دیتا ہوں۔ اصل میں یہ سچا واقعہ ہے۔ میں ایک زمانے میں گجرات کے قریب کنجا میں ایک سکول میں پڑھاتا رہا ہوں، اسلامیہ ہائی اسکول کنجا میں۔ تو یہ واقعہ وہاں پیش آیا تھا، اور یہ اتنا تکلیف دینے والا واقعہ تھا کہ مجھے کئی سال تک یہ میرے اندر کل بلاتا رہا۔ پھر ایک رات یوں ہوا، اور آپ یقین کریں میری جو اور مشہور نظم بنائن ہے وہ تو میں نے 5 منٹ میں لکھی تھی، لیکن یہ امبڑی جو ماں کے بارے میں اس پر 10 سال تک یہ میرے اندر کل بلاتی رہی ہے۔ اور پھر یوں ہوا کہ میں جب پنڈی گھیپ میں تھا تو ایک رات مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے نظم مجھ سے کہہ رہی ہے اٹھو اور مجھے لکھو۔ اور پھر میں نے یہ نظم لکھی، اور شکر ہے کہ اس کے بعد میری وہ 10 سالہ جو تھی پریشانی کہ یہ الفاظ کا پیرہن پہن لے وہ دور ہوئی۔ تو یوں ہے، یہ نظم پنجابی میں ہے۔ 2 لڑکے ہیں، ایک کا نام ہے بشیر اور دوسرا جو اس کا کلاس فیلو ہے اس کا نام اکرم ہے۔ وہ بشیر ایک دن اسکول میں دیر سے آتا ہے تو ماسٹر اس سے پوچھتا ہے، آج بڑی دیر نال آیا ہے؟ اوے بشیریا، اوے تیرا پنڈ تے نال ہی سکول ہے تے جائیں گے تو میرے کو ہڈیاں پنا کے تے آیا ہے آج 2 ٹلیاں کو سا کے۔ He is late by 2 periods۔ وہ کہندا ہے منشی جی میری ایک گل پہلا سن لو، اکر میں نے نیرجیا نیرج پایا جے مائی نوے ماردا ہے۔ He beats his mother، تے بڑا ڈاڈا ماردا ہے۔ آج اس پیڑکے نے حد پہ مکائیے، انہوں مار مار کے مدانی پن سٹی سو۔ بندے کٹھے ہوئے نے تے اتھوں پج وگیا ہے، چک کے کتاباں تے سکول ول نسیا ہے۔ مائیے دی منشی جی کر ساڈے آئی سی، منہ تے نیل سن سجا ہویا ہاتھ سی، اکھاں وچ اتھرو تے بلاں وچ رات سی۔ کہن لگی سونیا وے پتر بشیریا، میرا ایک کام بھی تو کریاں جہیریا، روٹی میرے اکرمے دی لئی جا مدرسے، اج پھر ٹر گیا میرے نال رس کے، کہ او وچ گن کے پراؤنٹھے اس پکے نے، ریج رن رنیاں سونڈیاں دا حلوا پونے وچ بن کے تے میرے ہاتھ دتی سو۔ ایہو گل آختی سی مڑ مڑ منشی جی چھیتی نال جائیں بیبا،
ਦੇਰੀਆਂ ਨਾ ਲਾਈ ਬੀਬਾ, ਉਹਦੀਆਂ ਤੇ ਲੂਸ ਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅੰਦਰਾਂ, उसकी अंतड़ियां भूख के मारे सिसक रही होंगी, ओदियां ते लूस दियां होणगियां अंदरां भुखा पाना। अज जो स्कूले टुर गया है, रोटियों ने दिती है, मैं भज्जा लगाया जे, अकरमे ने नेर जे हनेर अज पाया। हनेर जड़ा पाया है। अनवर भाई आपका बहुत शुक्रिया। ये हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन जब भी सुनते हैं तो इसमें एक नई मोहब्बत और एक नई जहद पैदा होती है। मैं तो अपने तमाम मेहमान की सवाल पूछूंगा कि उनकी नज़र में माँ क्या है, वो अपनी माँ को कैसा परसीव करते हैं। मेरी नज़र में माँ कैसी है। आप ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा खौफ तब खाते हैं जब आप तन्हाई की तरफ जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे वो मेरे सारे दोस्त जो कि इशफाक साहब को सुनते हैं, वो एक बड़ा मशहूर वाक़या सुनाते हैं। कुतुबुल्लाह शहाब साहब ने उनको मशवरा दिया था कि तू नमाज़ पढ़ा कर। वो पहले नमाज नहीं पढ़ते थे, तो वो इसलिए नहीं कि अल्लाह की मोहब्बत में। उन्होंने कहा कि मैं रिटायर होने वाला हूँ तो क्या करूँ। उन्होंने कहा तू नमाज़ पढ़नी शुरू कर दे। तो उसने कहा नमाज से क्या मिलेगा। उसने कहा जो तन्हाई का खौफ है वो चला जाएगा। तो कहते हैं कि मैं कई महीने पढ़ता रहा तो मुझे फ़र्क नहीं पता चला कि कैसे तन्हाई जाएगी। वहाँ जाते थे, नमाज़ पढ़ते थे। फिर मैं एक दफ़ा इस्लामाबाद चला गया तो मेरे पीछे बानो आपा को मिलने के लिए 5, 7, 8, 10 मर्द जो हैं वो आए और उन्होंने पूछा कि इशफाक कहाँ है। तो उन्होंने कहा इशफाक तो नहीं है। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं है वो घर में, वो कई दिनों से आ नहीं रहे। तो उन्होंने कहा शायद कर्जदार है, कुछ लेना देना। उन्होंने कहा कुछ नहीं, वो नमाजी हैं, ये उनके पार्टनर्स हैं नमाज पढ़ने वाले में, तो देख नहीं रहे नमाजी, तो आए हैं उनको पूछने। उन्होंने कहा अच्छा वो तो इस्लामाबाद है। उन्होंने कहा चलो फिर ठीक है, शुक्र है अल्लाह का खैरियत से। वो चले गए। इशफाक साहब कहते हैं कि इतनी मसरूफ़ ज़िंदगी के बावजूद भी मुझे कभी एहसास नहीं हुआ था इस तरह महरूमी का कि लोग जो हैं वो तनख्वाह छोड़ देंगे, जितना मुझे एहसास हुआ कि लोग जुड़ जाएंगे मुझसे आके जब मैंने नमाज पढ़नी शुरू की। रही लापा, आपके नज़दीक में माँ क्या है। मेरे नज़दीक माँ सिर्फ वो औरत होती है जो आपको वक्त देती है, अपना सारा वक्त देती है, अपना वक्त भी आपको दे देती है। मेरे लिए ये माँ है। आप माँ को कैसे देखती हैं। आप खुद भी माँ हैं, लेकिन आप माँ को कैसे देखती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो अनवर साहब ने वो सारी तारीफ तो कर दी माँ की, लेकिन मुझे जो मेरे अजान एक अल्लामा इकबाल की रुबाई सुनाया करते थे फ़ारसी की, और उसमें वो कहते थे कि औरत को अपने आप पर बड़ा फ़ख्र करना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात में अपनी सिफ़त तख्लीक सिर्फ उसे अता की है। तो माँ यानी एक ऐसा अजीम यानी वजूद है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस पूरी कायनात में मुंतखब किया कि मुझे इसलिए अपनी मोहब्बत के इज़हार के लिए वो, और अपनी रहमत भी सबसे ज़्यादा उसे दी, और अपनी सिफ़त तख्लीक भी सिर्फ उसे अता की। इतने बड़े बड़े पहाड़, इतने बड़े बड़े तनोमंद मर्द। मेरी एक सहेली ने बड़ा अच्छा वो वाक़या लिखा कि मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं बड़े मुतकब्बिर और तनोमंद मर्दों को उन हरी हरी बत्तियों के अंदर दौड़ता हुआ जब पाती हूं कि जब वो हज़रत हाजरा की उसमें उस ममता का वो है ना, वो उसकी ममता का वो है कि जब वो उसमें दौड़ते हैं, हम औरतें आराम आराम से चल रही अच्छा, वो दौड़ औरत पे फर्ज नहीं है, मर्द पे फर्ज है। वो मर्द पे फर्ज है। तो मुझे उस वक्त ममता का एहसास होता है कि औरत को अल्लाह ने कितनी बड़ी यानी अली वकार माँ वालदैन हयात है। वालदा की 2 साल पहले वफात हो गई। क्या नजरिया क्या है, माँ को आप कैसे देखते हो, कौन है माँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी राय में 2 ऐसी खसूसियात हैं माँ के अंदर जो या माँ में पाई जाती हैं या अल्लाह में पाई जाती हैं। आए जुमला तगड़ा कह गए हो। एक निहायत ही बेगर्ज मोहब्बत, आपकी तमाम तर समझ लें कि तमाम तर नाफरमानियों के बावजूद जिसकी रहमतों की निछावर होना ख़त्म नहीं होता। और दूसरा हद दर्जे की पर्दापोशी, हद दर्जे की पर्दापोशी या ये रब करता है या ये माँ करती है। और जैसे रब पर्दे रख के अपने बंदों को दूसरों के सामने पेश करता है, क्या खूबसूरत बात। माँ भी ऐसे ही पर्दे रख के सब कुछ जानते हुए भी अपनी औलाद को लोगों के सामने पेश करती है।